Dear friend, now we start Standard 10, Chapter 10, 15, Probability, Exercise 15.1. Question number 1. Complete the following statement. The probability of an event E plus probability of event not E, so E plus not E equal to 1. Means P of E means probability of E plus P probability of E complement P of E bar equal to 1. So answer is 1. Now the probability of an event that cannot be happen is dash, such an event is dash. The probability of an event that cannot happen, the probability which is not possible, which is not happen, the probability is 0. It is known as the impossible event. The probability of impossible event is 0. So that the probability of an event cannot happen is dash, so 0. Such an event is called impossible event. Question number 3. First में third number. The probability of an event that can certain happen. Event is certain, means the probability is 1. This is known as the certain event. This is known as the certain event. The probability of a certain event is 1. It is known as the certain event. Now question number 4. The sum of probability of all elementary event of an experiment is the 1. तो आंसर कितना आएगा? तो आंसर 1 आएगा. तो हम स्टार्ट का एग्जाम्पल समझाते हैं. The sum of probability of all elementary event is 1. Suppose x1, x2, dash xn are the event. Therefore, p of x1 plus p of x2 plus p of x3 plus p of xn equal to 1. Now 5 number. The probability of an event is greater than or equal to dash and less than or equal to dash. So any probability is greater than equal to 0 or less than equal to 1. So for any event E, 0 less or equal to P of E, less or equal to 1, probability is greater than or equal to 0 and less or equal to 1. कितना होता है? तो less than equal to 1. तो always 0 less than P of E, 0 less than or equal to P of E, less than or equal to 1 मीन्स 1 और 1 से छोटी होती है, 0 और 0 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है. तो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव द इक्वली लाइकली आउटकम? एक्सप्लेन. इक्वली चांस वाला है कि नहीं है, इसका रीजन के साथ समझाना है. नंबर 1. ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट. यहाँ ड्राइवर दिया है. किसका ड्राइवर दिया है? वो दिया हुआ नहीं है. कार की कंडीशन भी नहीं दी है. कार चालू कंडीशन में है, बंद कंडीशन में है, या कितने टाइम से बंद है, या बैटरी चालू है बंद है, वो कुछ लिया हुआ नहीं है. तो आंसर दिस इवेंट इज नॉट इक्वली लाइकली बिकॉज नंबर 1. ड्राइवर नोन द कार ड्राइविंग और नॉट, it is not given. Number 2. The condition of car is not given. Good condition और bad condition, ऐसे कोई कंडीशन की कोई कंडीशन दी नहीं है, इसलिए इस बोलते हैं नॉट इक्वली लाइकली बोलते हैं. नंबर 2. ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, सी और ही शूट द मिस द शॉट. तो आंसर इज इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली. क्योंकि प्लेयर क्रिकेट का भी हो सकता है, कबड्डी का भी हो सकता है. इसको बोले तो बास्केटबॉल खेल, तो ये शूट करेगा, कितना भी ट्राई करेगा तो जल्दी ये गोल होने वाला नहीं है. देखो इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली बिकॉज इट इज़ नॉट गिवन दैट प्लेयर नो द बास्केटबॉल गेम. बास्केटबॉल की गेम जानता है कि नहीं जानता है, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं, इसमें करेक्शन करना चाहिए. नंबर 3. A trial is made up of an answer true or false
question, the answer is right or wrong. So the answer, it is equally likely event. कोई छोटे बच्चे को भी बोलते हो ट्रू और फॉल्स के बारे में तो बताएगा ट्रू और फॉल्स, इसका आने का चांसेस कितना होता है, 50-50% होता है। तो कोई भी आंसर दो मिलने वाला है, ट्रू और फॉल्स, इसके अंदर एक ही आंसर मिलता है, कभी ट्रू है या फॉल्स है। ये चांस 50-50% है, therefore it is equally likely because only two events occur, true or false of this question. No other event is possible. Number 4, a baby is born, it is a boy or a girl. सिंपल बात है कि it is equally likely event because only two chances occur for the baby, boy or a girl. 50-50% चांसेस होता है, बॉय भी होता है और गर्ल होता है, therefore equally likely event. Why is a tossing a coin considered to be fair way, detecting wisdom? तो question is, why is a tossing a coin considered to be a fair way, deciding which team should be get the ball at the beginning of the football game? तो फुटबॉल की गेम जब स्टार्ट करते हैं वो टाइम में हम कॉइन टॉस करते हैं। तो कॉइन टॉस क्यों करते हैं इसका रीज़न दिखाने का है। तो आंसर, टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर टू बी ए फेयर वे टू डिसाइड विच टीम शुड बी गेट द गेम बिगिनिंग बिकॉज बैलेंसिंग कॉइन इज इक्वली लाइकली इवेंट, बोथ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल, 50-50% मीन्स 1/2। तो कितना चांस होता है, 1/2 चांस होता है। प्रोबेबिलिटी 50-50, जब इट इज़ इक्वली लाइकली इवेंट होने के हिसाब से हम कॉइन टॉस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी पॉसिबल? तो ए 2/3, 2/3 इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल। या नेगेटिव, तो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी पॉसिबल, तो ये आंसर है, करेक्ट ये आंसर आएगा। दिस इज़ द आंसर। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है बेटा। आंसर कौन सा आएगा? तो ये आएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। तो प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आंसर बी -1.5 because probability of an event cannot be negative. Probability is always 0 less or equal to P of E less or equal to 1. Now question number 5. If P of E equal to 0.5, what is the probability of not E? Now we start the answer. क्या दिया हुआ है? P of E equal to 0.5 दिया हुआ है, but we know the formula. P of E plus P of not E equal to 1, 0.05 plus P of not E equal to 1, P of not E equal to 1 minus 0.05। जब P of not E equal to 0.1 में से 0.05 माइनस कर दो तो 0.95 आंसर मिलता है। तो P of not E equal to 0.95 is answer. Now question number 6. A bag contain only lemon flavors candies. लेमन फ्लेवर कैंडी इतनी बैग कंटेन करता है जिससे कोई भी फ्लेवर की कैंडी अंदर है नहीं। मालिनी टेक आउट द वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स द ऑरेंज फ्लेवर कैंडी? सेकंड क्वेश्चन, ए लेमन के वन फ्लेवर द कैंडी। So now we start the answer. A bag contain only lemon flavor candy. लेमन कैंडी फ्लेवर अंदर है तो इससे कोई चांसेस नहीं है। तो इवेंट ए एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इज ऑब्टेन, तो P of A equal to 0 because it is impossible event because bag contain only lemon flavor candy. Event B, a lemon flavor candy is selected. It is a certain event
therefore P of B इक्वल टू 1, क्योंकि लेमन कैंडी बैग के अंदर है तो लेमन कैंडी आने का चांसेस पूरे का पूरा है, इसलिए सर्टेन इवेंट हो गया, therefore P of B इक्वल टू 1. Number 7, it is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not have the same birthday is 0.0992. What is the probability of 2 students have the same birthday? नॉट सेम बर्थडे की probability दी है तो सेम की probability 1 में से माइनस करो इतनी होनी चाहिए. तो 2 इवेंट हैव द नॉट सेम बर्थडे. इवेंट ए नॉट सेम बर्थडे P of A इक्वल टू 0.0992. P of A plus P of A bar equal to 1. P of A 0.0992 plus P of A equal to 1. Therefore P of A equal to 1 minus 0.0992. 1 में से 0.992 माइनस करो तो 0.9008. तो P of A bar equal to 9.9008. The probability of 2 friends have the same birthday is 0.09008. Or an event probability of the 2 friends have not same birthday. सेम बर्थडे नहीं है, इसकी probability इतनी है, तो सेम बर्थडे की probability कितनी होगी, तो माइनस करने का. तो 1 माइनस कर दो मतलब, तो जो मिले वो आंसर मिल जाएगा. तो P ऑफ सेम बर्थडे इक्वल टू 1 माइनस 0.0992. therefore P of same birthday equal to 0.9008. This is the answer. अभी ये सम को हम एक्स्ट्रा सम करेंगे, क्यों बुक के अंदर तो 0.992 दिया हुआ है, तो हमने जो पुराना सम था इसको हम एक्स्ट्रा सपोज कर लेंगे. अभी 7 और अभी चालू करते हैं. कभी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे तो 0.992 मीन्स 0.992. तो हम लिखेंगे तो 0.992 प्लस P of A इक्वल टू 1. therefore P of A इक्वल टू 1 माइनस 0.992. तो आंसर मिलेगा 0.008 इक्वल टू 0.008. दिस इज द आंसर. तो हम 1 में से 1.00 में से 992 माइनस करेंगे तो यहाँ 8 आएगा. 00 तो 0.008 आंसर मिलेगा. जब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सेम बर्थडे is 0.008. or second method for the main question which is given in book. यहाँ हमने जो आगे वाला सॉल्व किया एक्स्ट्रा सम, इसके अंदर हमने 0.0992 लिखा हुआ है, बट बुक के अंदर क्या दिया हुआ है, तो बुक के अंदर दिया हुआ है 0.992 दिया हुआ है. तो हम इसके हिसाब से करेंगे तो 0.992, तो इसके हिसाब से अपना आंसर आ सकता है 0.008 इक्वल टू 0.008 आंसर आ सकता है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम बर्थडे इज टेक्स्ट पर टेक्स्ट बुक आंसर 0.008. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम बर्थडे. हमने जो आगे एक्स्ट्रा सम किया इसके अंदर 0.0992 लिखा था, अभी हमें यहाँ दिया हुआ है एक्चुअल टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 0.0992. 0.992 ऐसा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ऐसा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ऐसा हमने एक्स्ट्रा में सब में कर दिया. तो हम अभी चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that
ball drawn is number 1 red, number 2 not red. We start the answer. A bag contain 3 red ball and 5 black ball. तो total number of ball equal to 8 हुआ. तो क्वेश्चन नंबर 1 था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज सिलेक्टेड. लेट इवेंट आर रेड बॉल इज सिलेक्टेड. तो P ऑफ R इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल बॉल. रेड बॉल कितने हैं 3, टोटल 8, 3 अपॉन 8 इज आंसर. नाउ नॉट रेड बॉल. तो इस 1 में से P ऑफ R माइनस कर लेंगे. तो 1 माइनस 3 अपॉन 8 माइनस 3 मीन्स 5 अपॉन 8. और दूसरी मेथड है P ऑफ नॉट रेड बॉल. इसका मतलब वो 2 ही बॉल है, रेड कलर का बॉल है, ब्लैक कलर का बॉल है. तो टोटल बॉल 8 है, 3 रेड कलर के 5 रेड कलर बॉल है. तो रेड के सिवा एक ही कलर पॉसिबल है 5. तो नंबर ऑफ दी ब्लैक कलर बॉल अपॉन टोटल बॉल. तो 5 अपॉन 8. ये भी दूसरी भी मेथड पॉसिबल है. तो 1 माइनस 3 अपॉन 8 कर दो तो भी 5 अपॉन 8. और नॉट रेड का मतलब नंबर ऑफ ब्लैक बॉल अपॉन टोटल 5 अपॉन 8. ये भी आंसर आए थे. क्वेश्चन नंबर 9. ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, 8 white marble and 4 green marble. 1 marble is taken out of a box at random. What is the probability that marbles taken will be red, white or not green? 3 क्वेश्चन दिए हैं. नाउ स्टार्ट द आंसर. हम आंसर स्टार्ट करेंगे. तो बॉक्स के अंदर कौन कौन से कलर के मार्बल है. तो 5 रेड कलर के मार्बल्स हैं, 8 वाइट कलर के मार्बल्स हैं, 4 ग्रीन कलर के मार्बल्स हैं. तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हुए 17. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल. इवेंट ए रेड मार्बल इज सिलेक्टेड. तो P ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ रेड मार्बल इन ए बॉक्स अपॉन टोटल मार्बल. तो 5 अपॉन 17. क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल. तो इवेंट बी वाइट मार्बल बी सिलेक्टेड. P ऑफ B इक्वल टू नंबर ऑफ वाइट मार्बल अपॉन टोटल मार्बल. P of B equal to 8 upon 17. Number 3, let event C not green marble, red plus white marble. See red plus white, so 5 plus 8 equal to 13. So P of C equal to number of not green मतलब red and white marble upon total marble. तो red and white का टोटल कितना था 13. तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी P of C equal to 13 upon 17. Question number 10. A piggy bank contain 100 50 paisa coin, 50 1 rupees coin, 20 2 rupees coin, 10 5 rupees coin. It is equally likely that one of the coin will be fall out when the bank is turned upside down. What is the probability that the coin will be 50 paisa coin, will not be 5 rupees coin. तो नाउ स्टार्ट द आंसर. हम आंसर स्टार्ट करेंगे कि पिगी बैंक के अंदर कितने कॉइन्स हैं. तो 50 पैसे वाले 100 कॉइन्स हैं, 1 रुपीज़ वाले 50 कॉइन, 2 रुपीज़ वाले 20 कॉइन, 5 रुपीज़ वाले 10 कॉइन. टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हुए 100 प्लस 50 150 प्लस 20 170 प्लस 10 180. तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन इक्वल टू 180. ऑल इवेंट आर इक्वली लाइकली आउटकम्स. इतना दिया हुआ है. तो लेट इवेंट ए द 50 पैसा कॉइन फॉल फ्रॉम द पिगी बैंक व्हेन अपसाइड द डाउन. तो P ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन अपॉन टोटल कॉइन्स. 50 पैसा कॉइन कितने हैं तो 100 है, 100 अपॉन 180. तो 100 अपॉन 180 करेंगे तो हम कह रहे हैं 0 0 कट हो जाएगा. 2 5 जा 10, 2 9 जा 18. तो 5 अपॉन 9 आंसर मिलेगा. तो P ऑफ A इक्वल टू 5 अपॉन 9 इज आंसर. तो नंबर 2 लेट इवेंट बी विल नॉट 5 रुपीज़ कॉइन. 5 रुपीज़ का कॉइन मिलता नहीं है. तो P इक्वल टू 50 पैसा कॉइन, 1 रुपीज़ कॉइन एंड 2 रुपीज़ कॉइन इस पर ऐड कर दो. तो कितने में टोटल 170. तो P ऑफ B इक्वल टू
टोटल कॉइन अदर देन द 5 रुपीज़ कॉइन अपॉन टोटल कॉइन। तो अदर देन 5 रुपीज़ कॉइन टोटल कितने थे? तो 170 थे। तो 170 अपॉन 180, 0 0 कट, 17 अपॉन 18। therefore P of B equal to 17 upon 18. This is the answer. Now question number 11. Gopi buy fish from a shop for the aquarium. The shopkeeper take one fish randomly from a tank contain the 5 male sheep and 8 female sheep. Total 13 sheep थे, 5 male and 8 female. What is the probability that the fish taken out is the not male sheep? मेल फिश होने के चांसेस कितना, प्रोबेबिलिटी कितनी? तो गोपी बाय फिश फ्रॉम ए शॉपकीपर फॉर द एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक आउट द वन फिश एट द रैंडमली फॉर द टैंक कंटेन 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल शिप। टोटल नंबर ऑफ फिश इक्वल टू 13। इवेंट ए टेकन आउट द मेल शिप, P of A equal to number of male sheep upon total number of fish. तो मेल शिप कितनी थी? 5। टोटल कितनी थी? 13। therefore P of A equal to मेल शिप 5 upon 13. तो 5 upon 13 is answer. Now we start the question number 12. A game of the chance consists of the spinning an arrow which come to the race point at the one of the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 as per figure. 1 number, 2 number, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहीं भी एरो रुक सकता है, मतलब ये एरो के बारे में लिखा हुआ है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 नंबर पे रुके, ऑड नंबर पे रुके, ग्रेटर देन 1 नंबर पे रुके और लेस देन 9 नंबर पे रुके, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? तो ए गेम ऑफ द चांस कंसिस्ट ऑफ द स्पिनिंग ऑफ एन एरो। गेम कंटेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल आउटकम इक्वल टू 8। लेट इवेंट ए 8 ऑब्टेन, 8 नंबर ओनली 1 है, तो अब फेवरेबल आउटकम कितना हुआ? 1 हुआ। तो P ऑफ A इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम मीन्स 1 अपॉन 8 आंसर। 1 अपॉन 8 को पॉइंट में निकालें तो 0.125। और ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मोस्टली ये आंसर लिखते हैं, कई सारे भी आंसर लिख सकते हैं। इवेंट बी एन ऑड नंबर इज ऑब्टेन। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के अंदर ऑड नंबर कौन कौन से हैं? तो 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर। टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर कितने हैं? तो 4 है। P ऑफ B इक्वल टू फेवरेबल आउटकम ऑफ B अपॉन टोटल 4 अपॉन 8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 1 अपॉन 2 में 0.5। ये भी 1 अपॉन 2 आंसर राइट है, 0.5 भी आंसर राइट है। इवेंट सी ग्रेटर देन 2, तो 2 से ज़्यादा कितना है? 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर है, तो 6 अपॉन 8, 3 2 जा 3 4 जा 3 upon 4। दिस इज द आंसर। 3 upon 4 0.575। ये भी हम लिख सकते हैं। लास्ट नाउ इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन एन इवेंट डी ए नंबर लेस देन 9। तो लेस देन 9 तो सब कुछ नंबर आ गए, मीन्स डी के अंदर 1, 2, 3, 4, 8 के 8 आ गए। तो P ऑफ D इक्वल टू 8 upon 8 मीन्स 1। इट इज़ द सर्टेन इवेंट, दिस इज द फिक्स इवेंट। therefore P of D equal to 1. The probability of event less than 8 is 1 is answer. Now question number 13. A die thrown once, one time die को थ्रो किया हुआ है, टॉस किया हुआ है। Find the probability of getting number 1 prime number, number 2 lying between 2 and 6, number 3 odd number. The die is thrown once means one time टॉस किया, तो टोटल आउटकम इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो डाइस ए टाइप का होता है, जो 6 साइड होती है, इस पर डॉट किए होते हैं, में 1 डॉट 2 होता है, 3 होता है, 4, 5, 6 ऐसे होते हैं, प्लस 6 डॉट होते हैं, इसको डाइस बोलते हैं। तो इवेंट आर ए प्राइम नंबर इज सिलेक्टेड, हम कोई भी ले सकते हैं, आर ले के P, K, L। तो इवेंट आर
ए प्राइम नंबर इज सिलेक्टेड, ये प्राइम नंबर कौन कौन से है 2, 3 एंड 5। तो आर इक्वल टू 2, 3, 5, तो कितने आउटकम है 3 मिले। तो पी ऑफ आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइम नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्राइम फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम ऑफ द आर। तो पी ऑफ आर इक्वल टू 3/6, 3 1 जा, 3 2 जा, 1/2 में 0.5। नाउ इवेंट क्यू इन नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 में बीच में कौन से नंबर है 3, 4 and 5। कितने नंबर है 3 नंबर। तो पी ऑफ क्यू इक्वल टू फेवरेबल आउटकम ऑफ क्यू अपॉन टोटल आउटकम, पी ऑफ क्यू इक्वल टू 3/6, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, तो 1/2 मीन्स 0.5, 1/2 भी राइट है, 0.5 भी है, 1/2, 0.5 दोनों राइट है। इवेंट एस एन ऑड नंबर इज ऑब्टेन, तो कौन कौन से ऑड नंबर है 1 to 6 के अंदर, तो 1, 3 and 5, टोटल 3 हुआ। तो पी ऑफ एस इक्वल टू फेवरेबल आउटकम ऑफ एस अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने थे 3 थे, टोटल आउटकम कितने 6, तो 3 1 जा, 3 3 2 जा, तो 1/2 इज आंसर। तो पी ऑफ एस इक्वल टू 1/2 में 0.5 इज आंसर। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14। One card is drawn from a well supplied deck of 52 card. Find the probability of getting a king of red color, face card, a red face card, jack of the heart, spade and queen of a diamond. बराबर। Now we start the total number of card equal to कितने होते हैं 52 कार्ड। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड इज 52। लेट एन इवेंट ए किंग ऑफ द रेड कलर। तो रेड कलर के किंग कौन कौन से हैं, तो एक के अंदर 2 किंग आएंगे, किंग ऑफ हार्ट एंड किंग ऑफ डायमंड। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने मिले 2। तो पी ऑफ ए इक्वल टू फेवरेबल आउटकम ऑफ द ए अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं, तो 2, टोटल आउटकम 52 आए। तो पी ऑफ ए इक्वल टू 2/52, 2 1 जा, 2 26 जा, 1/26। लेट इवेंट बी फेस कार्ड इज ऑब्टेन। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12 होते हैं। 3 फेस कार्ड होते हैं, मतलब हार्ट के होते हैं। 3 फेस कार्ड होते हैं डायमंड के होते हैं। 3 फेस कार्ड होते हैं क्लब के होते हैं। और 3 फेस कार्ड होते हैं मतलब स्पेड के होते हैं। टोटल 12 कार्ड फेस कार्ड हुए, मतलब फोटो वाले कार्ड। तो पी ऑफ बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड 12/52, 4 3 जा, 4 13 जा, 3/13। द इवेंट सी रेड फेस कार्ड इज ऑब्टेन। रेड प्ले, ये दोनों हार्ट वाला और डायमंड वाला वो रेड कलर का होता है। 3 + 3 कितना हुआ 6 हुआ। तो पी ऑफ सी इक्वल टू 6/52, 2 3 जा, 2 26 जा, 3/26 इज आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड इक्वल टू 3/26। नाउ इवेंट डी द जैक ऑफ ए हार्ट इज ऑब्टेन। जैक ऑफ ए हार्ट एक ही होता है। तो पी ऑफ डी इक्वल टू 1/52। नंबर 5 इवेंट ई ए स्पेड। तो स्पेड मतलब काली कितने होते हैं टोटल 13 कार्ड होते हैं। तो पी ऑफ ई इक्वल टू 13/52, 13 1 जा, 13 4 जा, 1/4। नाउ लास्ट नंबर 6 इवेंट है क्वीन ऑफ ए डायमंड। तो क्वीन ऑफ ए डायमंड कितने होते हैं, तो 1 ही होता है। तो पी ऑफ एफ इक्वल टू 1/52। तो यहाँ अपने वीडियो कंप्लीट करते हैं कि टोटल सम है ज़्यादा। तो हमने एक्सरसाइज 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर 15 के बाद हम चालू करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर फॉरवर्ड करना। थैंक यू वेरी मच।